श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय नीरवतारे ही भगवान विराजमान हुवन्ति। नीरवतारे ही भगवान विराजमान हुवन्ति प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते कटक जिला डालीजोड़ा श्री अरविंद श्री क्षेत्र प्रभात भाई प्रभात कुमार नायक को मु अनुरोध करुछि। प्रभात भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। नता तो नमाता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्ति ममेव न जाया न विद्या न वृत्ति ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले च नले पर्वत शत्रु मध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले च नले पर्वत शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मं प्रपाहि अरण्ये शरण्ये सदा मं प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त भाई भौणी को मोर नमस्कार। आध्यात्मिक इतिहास एत गोटे सबुठारु जुगान्तकारी आ गौरवोज्वल घटना। से केतोटी घटना को मन पकेबा आम प्रसंग अधिक स्पष्ट हम। से दिन थिला भाद्र मास तिथि थिला कृष्णाष्टमी। आकाश मेघाच्छन्न होगी थिला। चारिदिग निबिड़ अंधकार थिला। अविराम वृष्टि संसार उपर अगाड़ी पड़ता। मझे मझे प्रहरी मानकर चित्कार थिला। हठात से दिन से कारागार अवसाच्छन्न प्रकोष्ठटी गोटे उज्ज्वल आलोक आलोकित हो उठिला। किंतु से देवकी मूर्छित अवस्था थे। से चेता फेरी पाइला बेलू देखिक आश्चर्य होती कि अपरूप रूप गोटाए जुगर अधिक हेब दुख और विषाद कंसर भगिनी देवकी और भगिनीपति वसुदेव गृहमाण होते। देवकी से गोटे अपूर्व अदृष्टपूर्व अवर्णनीय सुंदर सुठाम संतान जननी। कि मात्र ये बंदीशाला प्रभात होबार अनति विडंबर ये कंस हाथ में ये अपूर्व शिशुर मृत्यु अवश्य भावी तापर किभଳି भाव से घन निरवतापूर्ण रात्रि
ତାର ଆଗରେ ରଖି କଂସର ପିତା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ବିଶ୍ୱର ଅଗୋଚରରେ ସେଇ ଘନ ତମସାବୃତା ନିଦ୍ରିତା ଧରଣୀର ଅନ୍ଧକାର ବକ୍ଷରେ ଏକାକୀ ବସୁଦେବ ସଦ୍ୟଜାତ ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ବନ୍ୟା ଉଦ୍ବେଳିତ ଯମୁନା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପୂର୍ବକ ମଥୁରାରୁ ଗୋପପୁର ଯାଏ ଏ ଯେଉଁ ଦୁରନ୍ତ ପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେପଟେ ପୁଣି ଗୋପରାଜ ନନ୍ଦଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନବପ୍ରସୂତା ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଜନନୀ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ବିନିମୟ ସୂତ୍ରରେ ପୁତ୍ରକୁ ରଖି ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ପୁଣି ଆଣି ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏଇ କଥା ଭାରତବର୍ଷର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବିରାଟ ଘଟଣା ସେଦିନ ଘଟିଗଲା। ଗୋଟେ ଘନ ନୀରବତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ରି ଭିତରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ଭଗବାନ ନିଜେ ସଂସାରକୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଘଟଣା। ଜାଣିଥିଲେ ବସୁଦେବ, ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ ସେଇ ଶିଶୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର। ଭଗବାନ ଏମିତି ନୀରବତା ଭିତରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେ ଆସନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ସେଇ ଘନ ନୀରବତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ଜେରୁଜେଲମର ଜଣେ ଅସହାୟ ମାତା ମେରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ପଶୁଶାଳା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ମେଣ୍ଢା ରହନ୍ତି ସେ ମେଣ୍ଢା ରହୁଥିବା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଯୀଶୁ। ତାଙ୍କ ଗାଁଟିର ନାଁ ଥିଲା ବେଥଲେହେମ୍। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ବୟସ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନାର କଳ୍ପନା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏକାକୀ ରହୁଥିଲେ, ବହୁ ନୀରବ ରହୁଥିଲେ, ଶାନ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସେ ନୀରବ ମନ ଭିତରେ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ କେମିତି ଏହି ମାଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ତ ଅନେକ ରହସ୍ୟାବୃତ୍ତ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସବୁ ରହିଛି। ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଏ ସବୁ କଥା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। କିଛି ରାଜପୁରୋହିତ ଏବଂ କିଛି ପୂଜକମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହିଁ ଆଦେଶ ହେଲା। ଯୀଶୁ ସେଦିନ ନୀରବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ଚାବୁକର ପ୍ରହାର ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଅନବରତ ରକ୍ତକୁ ବାହାର କରୁଥାଏ। ଜଣେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟଟି ଆଣି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଗଲା ବା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ସିଏ। ତାପରେ ଅବିରତ ଭାବରେ କପାଳରୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଝରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୂରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବା ଲାଗିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ମୁନିଆ ପଥର ମାରିବା ବେଳେ ପୁଣି ନାନା ପ୍ରକାର ଭର୍ତ୍ସନା ବି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେଉଥିଲା ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। ତୁମେ ପରା ରୋଗୀ ଲୋକକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇଛ, ମୃତ ଶବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଜୀବନ ଦେଇଛ, ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯୁବକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛ। କାହିଁ ତମର ସେ ଶକ୍ତି? ଦେଖୁନା ତମର ସେ ଶକ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମର ସେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି? ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ଭର୍ତ୍ସନା ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଦିନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଉଥିଲା। ଯୀଶୁ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଏ, ଅସହ୍ୟ ଯାତନା ଦିଆଯାଏ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଯାତନା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନୀରବରେ ସହ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତି। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ସେଦିନ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦେମ୍ନ ଏବଂ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ଏଇଠି ନିକଟରେ କୋଉଠି ଭଗବାନ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିକି ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବିଗ୍ରହରେ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଚାରି ଦିଗକୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଗଲେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏ କଥା କେବଳ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାଣିଛନ୍ତି
राजा इंद्रद्युम्न जानते एवं सैन्य मैंने किसी जानते बा चालाक बुद्धिमान मंत्री विद्यापति जानते गोटाए दिन गोटे पहाड़ तल देश विद्यापति जाऊला बेले शबर झील गोटे शबर पल्ली पाखे से संध्या पूर्वर खेलुत अवस्था बाघर गर्जन शुणिकी विद्यापति भाविले ये कौटी आत्मगोपन करहब क्या घरे आश्रय नहीं हम से झील मान देखिकी से बालिका मान खेल देखिकी विद्यापति जाकि पहुंची पचारे गोटाए रात्रि इठी क्या घरे आश्रय नहीं हम से झील मान भर गोटे झील था ललिता से आगक आसी कहला आपण आसतु आम घरे आज आप गोटे रात्रि यापन करेंगे बा विश्राम लेकिन आप पुणी तापर चली विद्यापति गले से गोटे रात्रि यापन भितर से घर जे मुरबी से कन्यार जे पिता थे विश्वावसु सी कहले ठीक अच्छे आप जिते दिन चाहिए आप आम घर पारती विद्यापति उद्देश्य हूँ भगवान को संधान करवा भगवान को आविष्कार करवा विश्वावसु सबुदिन प्रातः समय हेले भोर समय हेले डाल किसी फूल भोग राग धरिकी जाती पूजा करके आसवे विद्यापति सब घटना निरीक्षण कर देखी ये सबुदिन सकाळु कुआडे जाउछंती या भितरे किछि मास से रहिजा भितरे दिने ललिता को से विवाह करे प्रस्ताव दियंते एवं बापा मध्य ललिता को विवाह करछंती विद्यापति और ललिता भितरे सेठी विवाह अनुष्ठित होगी गोटे पारिवारिक जीवन यापन कला भली लागुछि विद्यापति दिने भावुछंती मु तो आसी भगवान को अन्वेषण में भगवान को संधान करने ये बर्तमान मुझे गोटे गृही जीवन यापन कले किंतु किछि दिन पर विद्यापति निजे जानुछंती ताहा भी मध्य भगवान की इच्छा थिला कहीं ना से किछि दिन रहिया भितर ये जो देखिले सबुदिन विश्वावसु राति पाइले डाल फूल धरिकी भोग नैवेद्य धरिकी कुआडे जाउछंती ललिता को दिने पचारे तो बापा सबुदिन कुआडे जाउछंती ललिता कहला मु भी खाली देखे सीना बापा के पचारने पचार देला दिने साहस करी बापा तुम सबुदिन सकाळ हेले कुआडू ये डाल फूल धरिकी भोग नैवेद्य धरिकी कौटी जाउछ विश्वावसु कहले से कथा तोर जानिबा दरकार नहीं आम वंशर जे आराध्य देवता आम वंशर जे स्वयं जीवंत विग्रह मुझे पूजा जाऊँगी ये जो बुद्धिमान मंत्री कहले देखो तुम वंशर तो तुम पर आउ कहीं ना केवल कन्याटी छाड़दे तुम वंशर सन्तान कहीं ना तुम पर से विग्रह किए पूजा करेंगे कि ना तेणु कौटी पूजा पाँच कौटी पूजा कराऊँगी यही खबर जाना निहाती दरकार कन्या बापा पाखे अर्दली करते अझट कला भली कथा कहते से जाणीदे ये कथा सबू विद्यापति जामाता जी ये प्रस्ताव गोटे शर्त से राजी लगे ठीक अच्छी मुझे विग्रह बा से मूर्ति बा से भगवान को देखेदेवी कि गोटाए शर्त भगवान सीना देखेबी रास्ता देखेबी बाट देखेबी ना विद्यापति से राजी हेले आखिर अंध पुटोड़ी बांधिकी से स्थान निगला कि ये जो चालाक बहुत बुद्धिमान हाथ में सोरिष नहीं जाते वर्षा दिन थिला बाट सारा सोरिष पकई गले जो जगार अंधपुटी खोली दिगला गुंफा भितर इंद्र नीलकांति युक्त देदीप्यमान स्वयं सुवर्ण पुरुष भगवान श्रीकृष्ण जो नाभि अंश थिला से कोठरी पूरा पूरा आलोकित होता से गुंफा भितर संपूर्ण उज्जवल आलोक आलोकित होता विद्यापति देखीदेला कि जाणीगले भगवान संधान मिलगला सेठू सीधा फेरी आसिले राजा इंद्रद्युम्न कहले भगवान मिलगले विश्वावसु नाम जड़े सवेर सी गुंफा भितर रखिकी नीलमाधव नाम पूजा करती आज कौन सी मते तार दर्शन पाई राजा भी कहले दर्शन पाई तो न आणिकी एका केमी आसिल पुणी सीधा विद्यापति आसती भगवान को सीधा सड़क ले एक विश्वास जानते नहीं ये सबू घटना नीरवता भितर घटीगला विद्यापति से दिन भगवान को चोरी करी नेला भली समस्त अगोचर समस्त लक्ष्य नहीं गले तापर जो घटना घटला आम जानू भगवान को लेकिन पुणी प्रतिष्ठा करने समुद्र भितर दारू ब्रह्म भासी आसिले मूर्ति तैयारी सी अलग कथा अलग इतिहास किंतु कहबार उद्देश्य होची भगवान को संधान करिया भितर विद्यापति ये नीरवतार अन्वेषण कार्य भगवान को दर्शन करने जो नीरवतार मुहूर्त अपेक्षा करते एवं भगवान को मध्य गोटे स्थान रू आणिक पुणी पुरी पहुँचवा यह सबकि नीरवता भितर घटीगला ये सबकि विराट विराट कार्य नीरवता भितर घटी जाए आम जानूना पृथ्वी भितर समग्र सृष्टि भितर के विराट विराट कार्य नीरवता भितर घटी जाऊँगी सबुठारु जहाँ चमकप्रद जहाँ मो चेतना को स्पर्श करिया घटना होची श्री अर्जुन जीवन घटना आलिपुर जेल भितर श्री अर्जुन को काठगड़ा को अणागला से दिन
चारिपटे विचारपति मैंने घेरिकी बसଛନ୍ତି वकील मैंने भी छिड़ा अजस्र दर्शक मैंने भी अच्छा श्री अरविंद को सीधा सड़क आनिक जो काठगड़ा छिड़ा कर दिया श्री अरविंद तल को मुह कर नरम भाव नम्र भाव छिड़ा एवं गोटे घन नीरवता चारिपटे विराजमान करुच्ची पूरा घन नीरवता वकील मैंने कथा कही सारापर जो मैंने सब थे साक्षी से कही सारापर श्री अरविंद खाली चारि दिग को अनाऊँ विचार ये कौन हम ना एत बयान एत दोषरे दोषी कर भितर बर्तमान विचार कौन हम से देखुं विचारपति जी श्रीकृष्ण वकील जी श्रीकृष्ण दर्शक जी श्रीकृष्ण कांथ श्रीकृष्ण पाचेरी श्रीकृष्ण चारि दिग समस्त श्रीकृष्ण एवं से जगह श्रीकृष्ण कहते व्हेयर इज द प्रोटेक्शन तोर सुरक्षा तो चिंता करूँ लुक नाउ आर द मजिस्ट्रेट विचारपति को देख लुक नाउ आर द प्रोसिक्यूटिव काउंसिल विचारालय भितर जो सब विचारपति से समस्त को देख आई लुक एंड इट वाज नॉट द मजिस्ट्रेट होम आई सॉ इट वाज वासुदेव ये वाणी जो शुणागला कहते मुझे देखिली आई सॉ इट वाज द वासुदेव कहले मु देखिली समस्त भितर स्वयं वासुदेव इट वाज नारायण से कौन नारायण ही थे ना विचारपति थे ना वकील थे ना जन समाज किए थिला समस्त भितर वासुदेव को देखुले नारायण को देखुले वाज सिटिंग देयर ऑन द बेंच एवं से बेंच रे बसले सी भी बसले वासुदेव नारायण आई लुक्ड एट द प्रोसिक्यूटिंग काउंसिल एंड इट वाज नॉट द काउंसिल फॉर प्रोसिक्यूशन दैट आई सॉ कहले मुझे से विचारालय विचारपति चाहिए एवं देखिली आई सॉ इट वाज श्रीकृष्ण हु सैट देयर जी बसले से श्रीकृष्ण इट वाज माय लवर एंड फ्रेंड सी थे मोर परम प्रेमिक एवं मोर सखा मोर बंधु हु सैट देयर द स्माइल एवं से बसी थे एवं मते देखी हसुले स्मित हास्य मत प्रदान करते कहले नाउ डू यू फियर इबे तो आउ भय करिवार अछि ही सेड भगवान श्रीकृष्ण कहते एबे तो आउ भय करिवार अछि आई एम इन ऑल मेन ये सब मनीष भितर मु अच्छी आई एम द रूल ये जगतर नियम हूँ मु एंड आई एम द ओवर ऑफ द रूल ये जगतर नियम उपर भी मु देयर एक्शंस एंड देयर वर्ड्स माय प्रोटेक्शन इज स्टिल विथ यू एंड यू शैल नॉट फियर इति समस्त कार्य को बदलवार सामर्थ्य मो पाखे अच्छी तेणु तुम किसी भय करार ना से दिन सहस्र सहस्र संख्यार दर्शक मैंने बाहर अपेक्षा कर चली आलोचना चली पर्यालोचना आज श्री अरविंद विचार कौन हम समस्त व्यक्ति मैंने बसला बेले ये दृश्य कहीं देखी पाना से दिन जमी कुरुक्षेत्र युद्ध भूरे एपटे हजार हजार सैन्य सेपटे हजार हजार सैन्य मझे रथ उपवेशन कर भगवान श्रीकृष्ण भागवत गीता व्याख्या कर जड़े देखुं से संजय देखुं इे अर्जुन देखुं आउ कहीं देखी पाना ठीक सेमती से दिन जेल भितर भगवान श्रीकृष्ण श्री अरविंद को समस्त भर दर्शन दे कहते आउ तोर भय कर ये जगतर नियम मु प्रत्येक मनुष्य भितर मु अच्छी ये नियम को अतिक्रम कला भली सामर्थ्य मो पाखे अच्छी नियम उपर एवं तांको देखिकी स्वयं वासुदेव नारायण हसुं आई एम द वासुदेव आई एम द नारायण यहीटा घन नीरवता भितर श्री अरविंद किंतु सब ही देखुले सब अवलोकन करते चारिटी घटना कथा आपण सम्मुख उपस्थापना करागला भगवान श्रीकृष्ण जन्म नेले घन नीरवतापूर्ण रात्रि भगवान जीशु जन्म नेले मेंढाशाला भितर विश्व केही भी जानते नहीं जे प्रेमर अवतार भगवान श्री जगन्नाथ परवर्ती समय जी हेले जे नीलमाधव की पूजा पाते विद्यापति पूरा से नीरवतार मुहूर्त भितर नहीं आसिकी पुरी मंदिर प्रतिष्ठा करें ये घटना घटी एवं श्री अरविंद विचार सारा समाज अपेक्षा कर सारा मानव जाति अपेक्षा कर श्रीकृष्ण सबू विचार को बदल की विचारपति मस्तिष्क प्रवेश करके विचार को बदल की आउ गए नुआ विचार दूसरी ये सब कथा नीरवता भितर घटी आ बहुत समय आमको लागे भावती मनीष बेसी कोलाहल कले बेसी कथबार्ता कले बेसी पार्टी कले बोधे बेसी बड़ बड़ काम करदेव आप देखु ये जो घटना जो चारिटी घटी तो अनेक कथा तो पृथ्वी में घटुची अनेक कथा अनेक घटना आम जानवे अजाणवे घटुची ये घटना घटुला ना से टीवी थिला ना रेडियो थिला
ना ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଥିଲା ନା ସାମ୍ବାଦିକ କେହି ଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖିଛି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କ'ଣ ଲୁଚିଛି କି? ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ କୋହରେ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ସର୍ବଜନ ବିଦିତ, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦିତ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ସେ ତ ଆଡଭାନ୍ସଟା ୟୁନିଭର୍ସ, ବିଶ୍ୱ ଠାରୁ ବିଶାଳତର। କେହି ଦେଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେତେବେଳେ କେହି ଫଟୋ ଉଠେଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମିଡ଼ିଆରେ ଏ କଥା କେହି ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ କେମିତି ହେଇଗଲା? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ କେବେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତିନି, ସିଏ କେବେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ କେବେ ପାଟି କରନ୍ତିନି, କୋଳାହଳ କରନ୍ତିନି, ନୀରବତା ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ସାରା ଜଗତ ଦେଖେ। ଗୋଟେ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଘନ ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀଟି ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଘରଟି ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଏ, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ନୀରବତା ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୀପର ଶିଖା, ଗୋଟେ ବଳିତାଟିଏ ସମୁଦାୟ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦିଏ। ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶେଫାଳି ଫୁଲଟେ ଫୁଟେ, ହେନା ଫୁଲଟେ ଫୁଟେ, ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲଟେ ଫୁଟେ, କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଫୁଲଟା କୋଉଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନାରେ ଚାରି ଦିଗ ମହକିଯାଏ। ଏ ବାସ୍ନା ସେ ନୀରବତା ଭିତରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇଯାଉଥାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇକି ମାଟି ତଳେ ଆମେ ପୋତି ଦେଉ ତଳେ ଦେଉ, ସେ ମଞ୍ଜିଟି ବିରାଟ ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ନୀରବତା ଭିତରେ ମଞ୍ଜିଟି ମାଟିରୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଇଯାଏ। ଏତେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଘଟଣା ନୀରବତା ଭିତରେ ଘଟିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା ବିଗୁଡ଼ାର ଲେଖିଛନ୍ତି ସଂସାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ନୀରବତା ଭିତରେ ହେଇଯାଏ। ଏପରିକି ଆମେ ଦେଖିବା 1914 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉଦିନ ମା ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସିଲେ, ଆଜି ବହିପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ କଥା ବହୁ ଜାଗାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ହଁ, ଗୋଟେ 1914 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ଦିନ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ 106 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା, କି ବା ସେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା? ମା ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ବେଳେ ଯାଇକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ବା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ମା ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଇଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଦିନେ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟଟି ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ବାସ୍ତବ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ସିଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ମାଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା ଉପଲବ୍ଧି। ସେଇ ନୀରବତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ମା କେବଳ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଦରେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାର, ସେ ସମୁଦ୍ର ସେପଟେ ଦିଗନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଗୋଟେ ବିଶାଳ ନୀରବତା ଭିତରେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଯଦି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ସେଦିନ ନ ଘଟିଥାନ୍ତା, ମା ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ଦର୍ଶନ ନ କରିଥାନ୍ତି, ବା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ପୃଥିବୀର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ସେଦିନ ଘଟଣା ଗୋଟେ ନୀରବତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା 1920 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ। ମା ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଇକି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖକୁ ମା କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟର ଦିବସ, ଭିକ୍ଟ୍ରି ଡେ ବୋଲି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭିକ୍ଟ୍ରି ଡେ, ବିଜୟର ଦିବସ। ବିଜୟର ଦିବସ ମାନେ କ'ଣ? ମା କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟର ଦିବସ। ମା ଭାରତକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫେରି ଆସିଲେ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିକି ମା ସେଦିନ ଘୋଷଣା କଲେ ସଂସାରରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହେଇଗଲା। ଏ ଘଟଣା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ିଲା ପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା କିଏ କଥା ଜାଣିଥିଲା? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ହେଉଛି 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସର 24 ତାରିଖ ସିଦ୍ଧି ଦିବସର ଘଟଣା। ମାତ୍ର 24 ଜଣ ସାଧକଙ୍କ ଭିତରେ ମା ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍ରେ 45 ମିନିଟ୍ କାଳ ଧ୍ୟାନ କରେଇଥିଲେ। 45 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ ପରେ ଦତ୍ତା ବୋଲି ଜଣେ ସାଧିକା ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଆଜି ନର ଦେହରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତରଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତରଣ କରିକି ମିଶିଗଲେ, ଏକାକାର ହେଇଗଲେ। ସେ ଦିନ ଏଇ କଥାକୁ କେତେ ଜଣ ବା ଜାଣିଥିଲେ? ଏଇ କଥାକୁ ଯିଏ ଜାଣିଥିଲେ ସିଏ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ କଥା ଆଉ କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା? ଘନ ନୀରବତା ଭିତରେ ସେ ଘରଟି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୀରବତାର ପ୍ଲାବନ ଘେରି ଯାଇଥିଲା। ଏ କଥା ଆମେ କେହି ଜାଣୁନା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ପୁଣି ଘଟିଲା 1938 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ବିଶ୍ୱରେ। ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସିକି
जर्मन इंग्लैंड रूसिया टोकियो हलांड ये सबू देश को नियंत्रण करवा यहीटा से नीरवतार प्रकोष्ठ भितर घटुला जहाँ विश्व में कहीं भी जानते ना तापर घटना हूँ 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारीख दिन राति अधर देश स्वाधीन होगा अर्धरात्रि ना कहीं बाण फुटाई अच्छा ना कहीं बाजा बजाई अच्छा ना किए जानी अर्धरात्रि इंग्रेज मैंने छाड़ी चलीगले तापरदिन सका जानिले जे भारत स्वाधीन होगा पूरा प्रचंड नीरवता भितर भारत स्वाधीन होगा कितने विराट कार्य हो नीरवता भितर तापर 1950 मसीहा डिसेम्बर मास 5 तारीख दिन अतिमान शक्ति श्री अरविंद को सीधासख अवतरण कर श्री अरविंद देह त्याग करदे अतिमान शक्ति पृथ्वी को अवतरण करने यही कार्य गोटे मानस आतीत कौन साधु सन्त ऋषि मुनि जोगी जहाँ के कल्पना भी करते श्री अरविंद से शक्ति को अवतरण करने दीर्घ 40 वर्ष काल से कोठरी भितर नीरवता भितर पूरा पूरी प्रचंड शांत अवस्था भितर ये जो साधना तपस्या जीवन आचरण करते से शक्ति अवतरण कले तो निजे शरीर त्याग कले शरीर विसर्जन कले ये कथा आम परवर्ती समय जानिले कि सेदिन ये कथा किए बा जानी ना ये कथा किसी घोषणा भी होता ए घटना पूरा पूरी नीरवता भितर घटीगला स्वयं अतिमान शक्ति समग्र जगत को अवतरण कर आसला ता नेक्स्ट घटना हूँ 1956 मसीहा फेब्रुआरी मास 29 तारीख गोल्डन डे जहाँ सुवर्ण दिवस बोली कहती से दिन अतिमान शक्ति पार्थिव जगत अवतरण करके पृथ्वी भितर स्थायी प्रतिष्ठित है से दिन प्ले ग्राउंड रे शताधिक साधक साधिका माने स्कूल छात्र से बसला बेले माँ भी से दिन अध घंटा अधिक समय ध्यान स्थगित बसते और माँ को शरीर से दिन विशाल शरीर होता विश्व ठार बृहत शरीर होता माँ देखिले ऊपर विशाल आकाश एवं तले मर्त्यभूमि ऊपर गोटे सुनार कपाट अच्छी एवं तले पृथ्वी पृथ्वी और स्वर्ग भितर मझे जो प्राचीर जो कबाटी भेद सृष्टि एक सुवर्ण कबाट माँ को हाथ को हाथुड़ी आसीगला से हाथुटा सुवर्णर एवं से माँ को कंठरे निजे अतिमान शक्ति बा निजे से दिव्य जननी कहते द टाइम हाज कम समय आसी जाइए शब्द नुह पाटी कर नुह माँ को अंतर भितर शब्द निजे अतिमान शक्ति कहते द टाइम हाज कम समय आसी जाइए से प्राचीर को गोटे प्रहार देवाई निर्देश आसीगला माँ को माँ लिखिं गोटे प्रहार से विराट प्राचीर भांगी खंड खंड होगला ऊपर अतिमान सालोक वर्षा भली पृथ्वी पर अविराम वृष्टि है ताने पार्थिव जगत रे अतिमान शरणु सुवर्ण आलोक एते मात्रा वर्षा भली आसला माँ भाभी जी आश्रमवासी जो मैंने प्ले ग्राउंड ध्यान से बसती से चेता शून्य होती किंतु दुर्भाग्यर कथा ये कथा कहीं जान थे ध्यान सरीगला समस्ते निजे निजे घर को प्रत्यावर्तन करगले ना कि कथा कहीं जापारे नहीं परवर्ती समय आम जानूँ यही कथा मात्र 4 जन लोक जानते आश्रम भितर 2 जन बाहर लोक 2 जन किंतु केते विराट घटना घटीगला अतिमान शक्ति पार्थिव चेतन अवतरण कला ये कथा नीरवता भितर घटीगला तापर सबुठ गुरुत्वपूर्ण घटना हूँ 1962 मसीहा एप्रिल मास 12 तारीख दिव्य प्रेम को माँ अवतरण कर आनले पार्थिव चेतना दिव्य प्रेम बल मृत्यु पर विजय हासिल हम जो शक्ति मृत्यु पर विजय हासिल कर सी हूँ दिव्य प्रेम 1962 मसीहा एप्रिल मास 12 तारीख दिन माँ सीधासख पुणी पार्थचन ओह्ल आनले जो कथा माँ घोषणा कलापर से आम जानिले एक कथा किए जानी कथा ये समग्र संस्थार घटी जाइए किंतु पूर्ण नीरवतार माँ एवं सुंदर कार्य पूरा नीरवतार घटी जाए एवं से आम देखा जो माँ को कार्य हुए जो जिते पाठचक्र सम्मिलनी शिविर आश्रम मानक कहीं नीरवता गुरुत्व दे जाए ना नीरवता भितर जदि श्री अरविंद माँ जब एत कार्य करमर कोलाहल करने कौन आवश्यक गोटे लाइन अच्छी सावित्री महाकाव्य से लाइन एब्सोल्यूट साइलेंस स्लीप्स एन एब्सोल्यूट पावर ये लाइन को बहुत समय कोट करा जाए सम्मिलन मानक शिविर मानक अनेक वक्ता भाई मैंने ये लाइन को उद्धार कर कहती एब्सोल्यूट साइलेंस एक परिपूर्ण नीरवता गोटे प्रशांत नीरवता एक अविचल नीरवता स्लीप्स एन एब्सोल्यूट पावर
गोटे परिपूर्ण नीरवता भितर चरम शक्ति निहित होगी परिपूर्ण शक्ति निहित होगी तेणु से कहुए आम जिते नीरव रहा नीरव रहा आजिकल बेले बेले आम भी आश्चर्य होती आपण ये कथा मन पकाउची आप देखो जो मैंने ये कार्यक्रम शुणुंट जेकोसी ग्रुप रे शुणुंट मझे मझे 10टी 12टी 15टी 20टा आप मेसेज छाड़ुं से मेसेज किसी आवश्यकता अच्छी भावतु चिंता करूँ आप गोटे नाइस टॉक लिखिदेवे 2-4 धाड़ी महामा बोली लिखिदेवे बा गोटे बंदे मातरम बोली लिखिदेवे जो मैंने श्रोता भाई मैंने शुणुंट कि जो भाई मैंने शुणुंट जो शताधिक श्रोता मैंने सब शुणुंट फट गोटे टिंग गोटे शब्द आसला से नीरवता भंग हो कि ना आमर तो आब्सोल्यूट साइलेंस बोली कहूँ जदि किसी निहाती आवश्यक अच्छी हाँ मेसेज धर टेक्निकल प्रोब्लेम है साउंड भल होनी निहाती दरकार मेसेज दियो तथापि गोटे चिंता करा था मन करूँ भल सुविधा नहीं आप 10टा मेसेज सागे सागे कौनटा हो सागे सागे साउंड ठीक हो प्रोब्लेम हो तो होस्ट आउट हो प्रोब्लेम हो तो स्पीकर साइड हो प्रोब्लेम हो तो श्रोता भी साइड टी अपेक्षा करवा धैर्य धरवा किंतु आम भाई भाई इतने धैर्य अभाव दे सांगे सांगे मेसेज पर मेसेज मेसेज पर मेसेज जो भाई भाई सब शुणुंट से मेसेज को देखला बेले कनसेंट्रेशन भांगुच कि ना नीरवता कभी नष्ट करुचु कि ना कहीं बुझते ना कौन आवश्यक से मेसेज कौन आवश्यक टी शब्द सृष्टि करार ये टी शब्द आम चेतना भितर केते क्षत सृष्टि करे आम जानते ना से टेंशन लिखले आब्सोल्यूट साइलेंस जिते पारिबा से नीरव रहा जिते पारिबा सम्मेलन मानक शिविर मानक आपने देखी समस्त भी जानते बहुत जगह आप देखो चारि दिग को 4टा माइक बजे लोक केते गीत बजाती आता एत कोलाहल भितर एत भयंकर पाचुंड भितर से माँ को शक्ति केमी काम कर आ गोटे लाइन लिखाई साइलेंस इन द माइंड ट्रांसेंडेंट एक्ट साइलेंस इन द माइंड मन जिते नीरव नीरव मन भितर ट्रांसेंडेंट एक्ट विश्वातीत काम कर भगवान से ही मन को आसती जो मन भितर नीरवता रहे बा नीरवता राजूत थाए से जगह को भगवान आसती गोटे कोलाहलपूर्ण मन भितर उत्तेजित मन भितर विक्षुब्ध मन पाखक भगवान आसती ना तेणु जो मैंने बहुत समय कहती माँ कहीं मो जीवन में आसुना आम जीवन में कहीं माँ आसुना आम भितरटी नीरवतार पूर्ण होनी आम कोलाहल करवा पार्टी करवा गोलमाल करवा आउ कहवा माँ आसिलानी माँ को प्रेजेंस फिल करानी माँ को अनुभव कर होनी माँ को अनुभव कर होनी उपस्थिति को जानी होनी माने कौटी गोटे आम कोलाहल वातावरण तैयारी कर जो मान टिकी भी अनुभव ज्ञान थो आप देखिए जो परिवेश में पूरा नीरवता राजनीति कर आउ जो परिवेश में कथबार्ता कोलाहल थी ये परिवेश को जी से परिवेश को जी जो मान अनुभव ज्ञान थे जानीपारे जे कौ परिवेश आपको भल लगुच जमी धरत गोटे जगह धूप थी चंदन थी पद्म थी मल्ली थी गोलाप फूल थी माने विभिन्न पूजा सामग्री थी से परिवेश को आपड़ जी आ गोटे जगह ताश खेल हो पशा खेल हो गंजे टणा हो अफिम खिया हो आप से परिवेश को जी कौ परिवेश गले भल लगे टी अनुभव ज्ञान थे जानीपर परिवेश गोटे प्रभाव अच्छे ठीक सेमती जो किसी लोग गोटे परिवेश में कोलाहल करती किसी विभिन्न प्रकार निरंतर कथबार्ता गपसप करती द्वारा कौन वातावरण विक्षुब्ध हो जाए आजिकल पूजा पार्वण दिन मानक केते साउंड से डीजे बाजिब केते जोरे माइक बाजिब या द्वारा कौ माँ आसवे कौ भगवान से आसवे किंतु लोक मैंने बुझते नहीं शब्द करने कथा करते आम जानते ना भगवान उपनिषद लिखाई स श्रव सबू शुणी पारती बोली से श्रव स चक्ष से सब देखी पारती बोली चक्ष माने बिना आखिरे देखी पारती बिना कान रे भी शुणी पारती भगवान को शुणा यही कान दरकार नहीं यही कानर दूरता केते बार जाए जदि यही कान रे भगवान शुणुते गज से दिन विपद पड़ी डाकिला भगवान कौन यही कान शुणुले द्रौपदी से दिन कुरुसभा डाकिले सी कौन यही कान शुणिक साहाय्य कले मुर्गुणी से दिन डाकिले सी कौन यही कान शुणुले औरभिल बरगछ माँ को प्रार्थना कले माँ कौन यही कान शुणुले सश्रव माने से अंतःकरण शुणती सश्रुणत कर्ण बोली माने कान न था शुणती आहर जब चिंता करवा भगवान पिंपुड़ी चालीर पदध्वनि भी शुणी पारती पिंपुड़ी चलीगला बेले तार पदध्वनि भगवान कान को शुभे जदि भगवान पिंपुड़ी पदध्वनि शुणी पारती से भगवान को ढोल बाड़े घंटी बजे शंख फुंकी बड़ जोरे शब्द करके डाकवा कि दरकार ये गोटे परिवेश भितर वातावरण भितर सारा संसार अच्छी आम जानती ना बुझी ना माँ से कहले
नीरवता भीतर रही सबुठ बेसी ग्रहणशीलता इन साइलेंस देयर इज द ग्रेटेस्ट रिसेप्टिविटी जी जिते नीरव रही पारिबो से सेते ग्रहणशील होई परिबो बा सेते धारण करि परिबो कहीं ना यार भितर गोटे निष्कंप नीरवता भितर सर्वबृहत कार्य साधित हुए निष्कंप नीरवता कौन से नीरवता माने आम नीरव नीरव जे कहते से नीरवता माने कौन आप देखिए छोट पिला अंक करते परंतु अंकटा कर मन पड़ा ना से कलम टाक धरिकी मुंड पाखे दुथर चार थर ठुक 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 कर बजाऊे चुपचाप हो कलम टाक मुंड पाखे रखिथे 2 मिनट 4 मिनट चुपचाप हो लिखा आरंभ करें तमें नीरव होगले अंक न आसले अंक आसीज ये हूँ तार प्रतीकात्मक कथा राब शब्द रु रब हो सब राब 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 शब्द है हूँ रब नाही रब नीरव जमती कौन नाही चल प्रचल ता निश्चल नाही शब्द निशब्द सेमती जो रब नाही ता नीरव शब्द नथिबा मुहूर्त ही नीरवतार मुहूर्त बोली कहुए परंतु हॉस्पिटल को आप जाइछंती अनेक रोगी माने बेड रे सोइछंती आपन सेठी बड़ पाटी कथबार्ता करे उचित कि रोगी माने सोइथिला बेले आपन कहे मोर बड़ पाटी कथबार्ता करे अभ्यास एवं मु अभ्यास जेतु मु करिवि सेठी आवश्यक कि बड़ पाटी सेठी नियत कथा दरकार कि छात्र माने परीक्षा बसी परीक्षा दौरान आप चारिपटे से बड़ जोरे कथबार्ता उचित कि किसी लोक बस ध्यान कर बड़ पाटे कि शब्द कर उचित कि जड़े किए रोगी टे बिछा विश्राणुची से गाँव किए माइक बजा उचित कि ये कथा लोक बुझते नहीं आजिकल प्रोसेसन दिन मानक डीजे बाजिब माटी थरला बेले शब्द हम देवी पाखे कौन अवतार पूजा कला बेले ये जो प्रचंड शब्द हुए ताद्वारा कितने लोक मान मानसिक स्तर कौन क्षति करदे एक भी लोक जानते ना कथा किसी बुझाते ना आम जानी ना चुली काठ खोलीदे पानी आपे आपे ठंडा हो परंतु गोटे चुली रे आपन कड़े बसी हाँडी बसी बता पानी गरम होती काठ खोली दिंतु काठ खोलीदे जमी पानी आपे आपे ठंडा हो आपन कथा कथा कम कर दिंतु मन स्वाभाविक नीरव हो मन भी शांत हो जी कथा कहवा कम करदे से मन शांत हो पानी गरम हेले आपन गोटे ग्लास को जदि गरम करे पानी भी गरम हो ग्लास को जदि गरम करे तलपट पानी जाड़ी निआ जाड़ी गरम करेंगे ता भितर जमी पानी गरम हो जाए सेमती आप दिन सारा खाली बहुत कथबार्ता करूँ निरर्थ गप करूँ ता द्वारा कौन ना मन भी गरम हो तेणु से नीरवता को अर्जन करने प्रथम हूँ बाक संयम जी आवश्यक से कथबार्ता कथा कम करदे जनकर मनटी धीरे धीरे शांत नीरव हो आप रथयात्रा को जाइए 10 लाख लोक रथयात्रा जमाट होती कि आप क्या चिन्ह ना आप नीरव रहा बाध्य 10 लाख लोक थे आप चिन्ह कहीं ना परिचित कहीं ना आप क्या सांगे कथा हे चेष्टा कले आप नीरव रहा बाध्य हे कि गोटे घर भर आप थे आप सामने टीवी थी ना हाथ में मोबाइल थी कहीं न था आप मन नीरव नुह कि आप नीरव हेनी हाथ में मोबाइल थे टीवी थे कि जड़े नीरव रहा तमें 10 लाख लोक थी जड़े नीरव रही पारे कहीं न थी जड़े लोक कोलाहल भर रही पारे ये हूँ मनुष्यर मन उपर सब निर्भर कर नीरव रही कि नापर बहुत किसी निर्भर कर जड़े शिष्यटे जड़े गुरु को पचारती कहले गुरुदेव ब्रह्म कहले कौन गुरु किसी कहले कि समय पर पुणी शिष्यटी पचार कहले गुरुदेव ब्रह्म कहले कौन गुरु पुणी नीरव रही पुणी आउ थे शिष्यटी पचारती गुरु ब्रह्म कहले कौन दयाकोरी कहतु गुरु कहले तोर सबुथर प्रश्न उत्तर मुझे दूसरी तूटा मूर्ख किसी बुझीपारन ये शिष्य कहला मुझे जिते थर पचार आप कि कहना नीरव रोच आप उत्तर केत देले गुरु कहले तू जो पचार ब्रह्म कहले कौन ब्रह्म को कौन पार्टी कह जाए ब्रह्म को कौन देखई दि जाए ब्रह्म को कौन एमती सामने छिड़ा कर दि जाए ब्रह्म को पार्टी कह जापे नहीं ब्रह्म को देखई दि जापे नहीं ब्रह्म विषय बुझे दि जापे नहीं ब्रह्म को बुझा पाले नीरवता दरकार उत्तर में मुझे नीरव रोली तू तो बुझीपारनु तू भावु मुझे बोधे शब्द से बुझेदेवी ब्रह्म को बुझापे नीरव रहा दरकार गुरु तक आचरण देखुले जिते नीरव रही पारू से ब्रह्म को बुझू और से देखु माँ 4 वर्ष बयस नीरवतार मूर्तिमंत विग्रह थे 4 वर्ष बयस ध्यान करने प्राक्ट होता 4 वर्ष बयस पूरा नीरव रही से समय से अनुभव कले ये समग्र विश्वर भार से बहन करने
सते जन्म होती माँ दिन हेल्ले पचारे तू एत नीरव रोचु एत शांत रोचु एत गंभीर रोचु तू कौन सारा विश्वर भार मुंडेचु ना कौन से बयस माँ कहते ये सारा विश्वर भार मो मुंडर नहीं कौन तुम मुंडर अच्छी यहाँ केमी माँ कथर आसला ना केवल ही माँ पूर्ण नीरवतार समय अतिबाहित कर माँ कथर ये कथा सब आसला माँ थे 8 वर्ष बयस बेले से परवर्ती समय वर्णना कर सहर को गोटे सर्कस पार्टी आसला माँ को बापा सी चाहते माँ को एवं बड़ भाई माते को 2 जन को सर्कस देखा ने माँ किंतु केबे बाहर को जाऊ पसंद करते ना जिते माँ को आसिक बापा कहले आज आम सहर को गोटे सर्कस पार्टी आम जा सर्कस देखा माँ कि सीधा सड़क मना कले मोर सर्कस देखी जा दरकार ना बापा पचारे घर भर तू कौन करुचु से सर्कस पार्टी को केते प्रकार जीवजंतु मान आसती केते लोक एकाठी थे आम गले देखा तेणु सर्कस देखा जा माँ कहले मु नीरवता भितर जो सर्कस देखुची तम सर्कस पार्टी से कथा सब अच्छी नीरवता भितर जो सर्कस देखुची माने माँ जो ध्यानस्थ हो जाते सी जो चेतनार गभीर को जाते ये सारा जगतर दुखी रंकी कष्ट रोगी जंत्रणाक्लिष्ट लोक मानक माँ जो साहाय्य करते माँ जो भूमि को जाते माँ कहले से भाया कथा से अवस्था से अच्छी कि तेणु माँ नीरवता भितर यही कार्य करुले आमको हेत एक कथा जना पड़ेनी तेणु नीरवता भितर माँ जो आनंद पाँच बाहर को कहीं जी से सर्कस देखिए कौन से देखिए माँ गोटे कहते साधारण व्यक्ति टीए जीवन में कष्ट आसिले चारिड़े कही बुले ये साधारण व्यक्तिर लक्षण नॉर्मल मनुष्य जेनेल मनुष्य जी टिके जीवन में कष्ट आसिले से चारिड़े कही बुल कि मात्र असाधारण मनुष्य जी जन असाधारण व्यक्ति से निज कष्ट को भीतर रखते नीरवतार सामना करते जमी सावित्री सावित्री कौन सामना कले सावित्री जानी गोटे वर्ष पर भयंकर कष्टर समय आस भयंकर जीवन मुहूर्त आसो ना शाशु को कहते ना शशुर को कहते एपरी ना सत्यवान को कहते क्या कही न निज भितर भितर चापी दिन गणुले मुहूर्त गणुले जमी घंटा कंटा सेकेंड कंटा गणती सावित्री दिन गणी शेष दिन जो दिन वर्षक पड़ो से दिन सत्यवान सारे जंगल को बाहर आज मुझे साथ जी ये कथा कहीं जानते से जानते यही कथा को सामना कला भाई आउ क्या सामर्थ्य ना जेहेतु सी जन्म होती कार्य को सामना करने जानते सी नीरवता भितर से सामना करने निजे प्रस्तुत होती चमत्कार लिखते ए कम्बाटांट इन साइलेंस ड्रेडफुल लिस्ट नीरव निर्मम रणांगन से जोधरी ए कम्बाटांट साइलेंस ड्रेडफुल लिस्ट नीरव निर्मम रणांगन कले सावित्री जो दिन सम्मुखीन हे सी गोटे निर्मम रणांगन से दिन जो युद्ध हम जमराज सांगे मृत्यु देवता सागर युद्ध हम जम होती निर्मम सी हुए तो नब ना हुए तो परास्त हम किंतु यही कथा गोटे नीरवता घटव ये जम सांगे खंडा तरबार युद्ध करहब ना ये ज्ञान चेतन युद्ध कर तेणु ये युद्ध हूँ नीरवतार युद्ध साइलेंस कह एवं निर्मम कहीं ना मृत्यु सहित तार समर हम जोटा कि पृथ्वी आज पर्यटन एमती संघर्ष एमती युद्ध कहार भी नहीं दि वर्ल्ड अनोइंग ए विश्व कहीं भी जानती ना फॉर दि वर्ल्ड सी स्टूड जो जगत पर से छिड़ा होती जो संसार में जन्म होती ये संसार कहीं भी जानते सी प्रकृति किए नो हेल्पर हार्ड सी सेव द स्ट्रेंथ विदिन तांको साहाय्य करने कहीं भी ना शाशु ना शशुर ना स्वामी कहीं भी ना नो हेल्पर हार्ड सी सेव तांको रक्षा करने कहीं ना सामर्थ्य स्ट्रेंथ विदिन निज भीतर सामर्थ्य अच्छी अंतर सामर्थ्य अंतरात्मार शक्ति देयर इज नो विटनेस ऑफ टेरेस्ट्रियल आइज एपरी कौन सी मर्त्य चक्षु साक्षी रूपे ना कहीं ए दृश्य को देखा ना जंगल भितर जो घटना घटव किए से अच्छी देख किए लिपिबद्ध कर ये कथा किए से अवलोकन कर कहीं भी ना कहले मर्त्यर जड़े भी कहीं चक्षुधारी मनीष बा चक्षुधारी जीव कहीं ना ये दृश्य को देखिए दि गॉड्स एबव एंड नेचर सोल बिलो ऊपर देवता माने तले विश्व प्रकृति तले पार्थिव प्रकृति ये कथा को देखुं देवता देखुं तले प्रकृति देखुची विराट कार्य ये विराट कार्य होची मृत्यु सांगरे युद्ध बा जमराज सांगरे युद्ध यही कार्य को तले से देखुं बर्तमान ऊपर देवता माने तले विश्व प्रकृति बा पार्थिव देखुं
ସାବିତ୍ରୀ ସେଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରବତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ବିରାଟ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରବତା ଭିତରେ ଘଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେତେ ଆମେ କୋଳାହଳ ଭିତରେ, କେତେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଭିତରେ, କେତେ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିରବତା କାହିଁକି ଜୀବନରେ ସହଜରେ ଆମର ପ୍ରକଟ ହେଉନି? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ପୁରୋହିତ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଚାରିପଟେ କିଛି ଶ୍ରୋତାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଘେରିକି ବସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ନିୟମ ହେଉଛି, ପୁରୋହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିରବରେ ଶୁଣିବେ, କେହି କଥା କହିବେନି। ପୁରୋହିତ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେଦିନ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭୁଲ ପଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଶ୍ରୋତାଟେ ତାକୁ ଖେଞ୍ଚିକି ପାଖ ଶ୍ରୋତା କହୁଛି, କହିଲା ଆଜି ପୁରୋହିତ ଭୁଲ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ। ତା ପାଖ ଶ୍ରୋତାଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରୋତାକୁ ଖେଞ୍ଚିକି କହୁଛି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, କହିଲା ଦେଖେ ଆଜି ପୁରୋହିତ ଭୁଲ ପଢ଼ିଦେଲେ। ତା ପାଖ ଶ୍ରୋତା କହୁଛି, କହିଲା ତୁ ଜାଣିନୁ କି ଏଠି କଥା କହିବା ଚାହୁଁନୁ, କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? ତା ପାଖ ଶ୍ରୋତା ତାକୁ ଖେଞ୍ଚି କହୁଛି, କହିଲା ଜାଣିନୁ କି କଥା କହିବା ତୁ କାହିଁ କଥା କହୁଛୁ? ସେପଟ ଶ୍ରୋତା ତାକୁ ଖେଚି କହିଲାଣି, ଆରେ ଜାଣିନୁ ଏଠି ବସିଲେ ନିରବରେ ବସିବାକୁ ହୁଏ, ତୁ କାହିଁ କଥା କହୁଛୁ? ସେଇଠୁ ପୁରୋହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ପଢ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଖିଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ, ସମସ୍ତେ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ତାକୁ ଖେଞ୍ଚି କହୁଛି, ତୁ କାହିଁ କଥା କହୁଛୁ? ସିଏ ବି ତାକୁ ଖେଞ୍ଚି କହୁଛି, ତୁ କାହିଁ କଥା କହୁଛୁ? ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଜଣେ ଲୋକ ଚୁପଚାପ ବସି, ପୁରୋହିତଙ୍କ ଆଖି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି, କହିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଏକା ଯାହା କଥା ହେଇନି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲେଣି। ଆଜି ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ୟାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇଗଲେଣି। ଇଏ ତାକୁ କହୁଛି, ସିଏ ତାକୁ କହୁଛି, ସିଏ ତାକୁ କହୁଛି, ଆମେ ଜାଣୁନା। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ଧରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପଶିଯିବେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥାନ୍ତି ମାଡ଼ ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ନିରବ କରାନ୍ତି, ପୁରା ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ପିଟିକି ନିରବ କରାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବଡ଼ ପାଟି କରିକି ଧମକ ଦେଇ ନିରବ କରନ୍ତି, ନିରବ ରୁହ, ନିରବ ରୁହ, ନିରବ ରୁହ କହିକି ବଡ଼ ପାଟିରେ ନିରବ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥାନ୍ତି ପାଟିରେ ଚାବି ଦେଲା ଭଳି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇକି ନିରବତାର ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖି ନିରବ କରାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ଥାନ୍ତି ନା ମାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି, ନା ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ନା ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦିଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ପଶିଗଲେ ପିଲାମାନେ ନିରବ ହେଇଯାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବ, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ନିରବତା। ଡରିକି ନିରବ ରହିବା ନୁହଁ, ଧମକରେ ନିରବ ରହିବା ନୁହଁ, କି ପାଟି ଶୁଣି ନିରବ ରହିବା ନୁହଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ଅଛି, ସେଭଳିଆ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖି ଯଦି ଲୋକ ନିରବ ହେଇଯାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନିରବତା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ନିରବତା। ସେଦିନ ଉତ୍ତରପଟ ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅର୍ଘ୍ୟ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ 10,000 ଲୋକ ନିରବ ରହିଥିଲେ। ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋର ସଭାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଯେତେ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ନିରବରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓଝ ଶକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିରବ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ଲୋକମାନେ କୋଳାହଳ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କଥା କହିଲା ମାନେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିରବତାର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ କରିଦେଇପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଜଣେ କ୍ଲାସକୁ ନିରବ କରିପାରୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ ଜଣେ ପରିବାରକୁ ନିରବ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ସେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବା ଭଗବାନ ଯିଏ ବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା, ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ନିରବ ନ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି କଥା ଅନୁଭବ କରିବ? ବାହାରକୁ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ବାହାରକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଘର କରିଥାଉ, ଯେମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଉ, ଯାହା କରିଥାଉ, ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେ ଘର କହନ୍ତୁ, ସେ ପୋଷାକ କହନ୍ତୁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ କହନ୍ତୁ, କିଛି ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାହା ହେଇଛୁ କି ଯାହା ଆସିନି, ଯଦି ମନ ବି ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଲା, ମନ ବି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରହିଲା, ମନ ବି କୋଳାହଳ ରହିଲା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ନିରର୍ଥକ ହେଇଯିବ, ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ନିରବତା, ଯେତିକି ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଶବ୍ଦ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ମନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିରବତା। ମନରେ ନିରବତା ହେଲେ ଶାରୀର ସ୍ତରକୁ ତାହା ଆସେ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିରବତା ଯେତେବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଆମ ଚେତନାକୁ ସେ ନିରବତା ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରାଇବ, ଏବଂ ସେ ନିରବତା ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ହେବେ। ଶେଷ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛି ରଚନା ଲେଖୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ସମୟ ଲେଖୁଥିଲେ, ଅମଲ କିରଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହିରେ, ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଦେବାଦେବମାନେ ଘେରିକି ରହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାରିପଟରେ, ଏବଂ ଦେବାଦେବମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଆପଣ ଲେଖାରେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଦେବାଦେବମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖାରେ କିଏ ସ୍ଥାନ ପାଏ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା। ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା ସେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ଧନ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ନିରବତା ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଷା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା। ଦେବାଦେବମାନେ ତାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଉଥିଲେ, ନିରବତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଭାଷା ବୁଝୁଥିଲେ।
ଜାପାନରେ ଥିଲାବେଳେ ମା ଗଛର ଭାଷା ବୁଝୁଥିଲେ, ଫୁଲର ଭାଷା ବୁଝୁଥିଲେ। ଏ ସବୁ ନୀରବତାର ଭାଷା। କୈକେୟୀଙ୍କ ପିତା ଯିଏ ଥିଲେ କେକୟ, ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲେ, ରାତିରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗଛର ଦିଟା ଚଢ଼େଇ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ସେ ଚଢ଼େଇ ଦିଟାର ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଇଏ ସବୁ ଥିଲା ନୀରବତାର ଭାଷା। କେହି କେହି ଥାନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ସଂଳାପ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, କେହି କେହି ଥାନ୍ତି ଫୁଲର ଭାଷା ଶୁଣିପାରନ୍ତି, କେହି କେହି ଥାନ୍ତି ଫଳର ଭାଷା ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଷା ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଭାଷା ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ସେଇମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ମନଟି ନୀରବତାର ଗନ୍ତା ଘରେ ଯାଏ, ନୀରବତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମନଟି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 Ma 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 ma